Good day to all my dear lovely watcher. Let's start our video. Class 5, Chapter 5. Looks can be deceiving. शक्ल धोखा दे सकती है. Overview. Some people do not have good looks. कुछ लोग अच्छे नहीं होते. It does not mean, इसका मतलब यह नहीं, they do not have any worth, कि उनकी कोई कीमत नहीं है. और people should not befriend with them. या लोगों को उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए. Looks are the gift of God. रूप ईश्वर का वरदान है. Some get it. कुछ को मिलता है. And some not. और कुछ को नहीं. Good looks do not guarantee good quality too. अच्छा रूप भी अच्छे गुणों की गारंटी नहीं देता है. So do not be misguided by looks. इसलिए रूप रंग के बहकावे में न आए. To know more, read this story. अधिक जानने के लिए यह कहानी पढ़े. Let's read. Fat and grimy, short, मोटा, मैला और नाटा, and slimy was Pankaj, और गंदा पंकज, the abominable school boy. वो घिनौना या बदसूरत स्कूली लड़का था. Everyone, even teachers, grimaced when he prodded along the school corridors. जब वो स्कूल के गलियारों में इधर-उधर घूमता तो सब, यहाँ तक कि शिक्षक भी, मुंह बनाते. Very few went near, बहुत कम लोग उसके पास जाते, and even fewer spoke to him. और उससे बात तो और भी कम करते. पंकज had absolutely no friends, पंकज का न तो कोई दोस्त था, and no guardian. और न ही कोई अभिभावक. He lived with his grandmother, वो अपनी दादी के साथ रहता, and played alone, और अकेले खेलता था, only because he looked a tad unlike other humans. सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरे इंसानों से थोड़ा अलग दिखता था. Why nobody likes me? कोई मुझे पसंद क्यों नहीं करता? He often thought when alone. वो अक्सर अकेले में सोचता था. But found no answer. लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था. He had hair all over his body and his face. उसके पूरे शरीर और चेहरे पर बाल थे. An angular nose. नाक टेढ़ी थी. His extra two teeth that hung over the others. और उसके दो अतिरिक्त दांत जो दूसरों के ऊपर लटके हुए थे. Looked felony when he smiled. जब वो मुस्कुराता तो मानो अपराध जैसे लगते थे. His looks were so viscous, उसका चेहरा इतना चिपचिपा था, that everyone preferred to stay away from him. कि हर कोई उससे दूर रहना पसंद करता था. He asked his grandmother, उसने अपनी दादी से पूछा, Why I am so hated? मुझसे इतनी हेट क्यों की जाती है? Only I have no friend. बस मेरा कोई दोस्त नहीं है. Is it due to my appearance, grandmother? क्या यह मेरे रूपरंग की वजह से है, दादी? It is in the hands of Almighty. यह तो ऊपर वाले के हाथ में है. He made you so. उसने तुम्हें ऐसा बनाया है. It is not your fault. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है. But tell me, do I hate you? लेकिन बताओ, क्या मैं तुमसे हेट करता हूँ? She asked. दादी ने पूछा. No, grandmother. नहीं दादी. He said absent-mindedly. उसने बेसुध होकर कहा. Don't worry if you have no friends. अगर तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, तो चिंता मत करो. You have one friend who will never leave you. तुम्हारा एक दोस्त है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा. She said smilingly. दादी ने मुस्कुराते हुए कहा. Are you joking, grandmother? क्या तुम मजाक कर रही हो दादी? He was curious. वह उत्सुक था. No, not at all. नहीं, बिल्कुल नहीं. It is the God. यह भगवान है. Oh yes. अरे हाँ. पंकज got cheerful. पंकज खुश हो गया. And started playing. और खेलने लगा. And so he grew up alone. और इस तरह वह अकेला बड़ा हुआ. Isolated only with his grandmother for company. सिर्फ वह अकेले अपनी दादी के साथ रहता था.
He talked to God like a friend. वह भगवान से एक दोस्त की तरह बात करता था and was never disappointed. और कभी निराश नहीं होता था. When he was out of school, जब वह स्कूल से बाहर होता था, he fetched some work for himself. तो वह अपने लिए कुछ काम ढूंढ लेता था, as he did not want to go through all the trials of being poked at in college. क्योंकि वह कॉलेज में चिढ़ाए जाने की सारी परीक्षाओं से नहीं गुजरना चाहता था. His peers Rajan and Rahul, उसके साथी राजन और राहुल, who gave him nightmares with incessant ragging, जो उसे लगातार रैगिंग के डरावने सपने दिखाते थे, went on to college like the other boys in his class. उसकी कक्षा के दूसरे लड़कों की तरह कॉलेज चले गए. Soon Pankaj's grandmother expired. जल्द ही पंकज की दादी का देहांत हो गया, leaving him completely alone. जिससे पंकज बिल्कुल अकेला रह गया. पंकज moved out of the locality to another state for work. पंकज काम की तलाश में उस इलाके से दूसरे राज्य चला गया. After a bit of searching, थोड़ी खोजबीन के बाद, he was employed in a local factory at a measly sum. उसे एक स्थानीय कारखाने में मामूली वेतन पर नौकरी मिल गई, even lower than the others at his level. जो उसके स्तर के बाकी लोगों से भी कम था. All because he looked ugly. सब इसलिए क्योंकि वह बदसूरत दिखता था. But it did not matter to पंकज. लेकिन पंकज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, so he worked hard. इसलिए उसने कड़ी मेहनत की. And worked long. और लंबे समय तक काम किया. Soon it came to the notice of his seniors. जल्द ही उसके सीनियर्स को पता चल गया that he was much smarter than the others in his department. कि वह अपने विभाग के बाकी लोगों से कहीं ज्यादा होशियार था. Mending tools. औजारों की मरम्मत and fixing pipes was a piece of cake for him. और पाइप ठीक करना उसके लिए बहुत आसान था. Often he was sent outside the factory to repair the broken machines and fix pipes. अक्सर उसे कारखाने के बाहर टूटी मशीनों की मरम्मत और पाइप ठीक करने के लिए भेजा जाता था. Once a drain had been choked. एक बार एक नाली जाम हो गई थी. And all the water from the factory sewage was flowing back into the factory. और कारखाने के सीवेज का सारा पानी वापस कारखाने में बह रहा था. The best of engineers rummaged their head to fix it. अच्छे इंजीनियरों ने उसे ठीक करने के लिए बहुत कोशिश की, but in vain. लेकिन सब बेकार. When somebody mentioned पंकज, जब किसी ने पंकज का जिक्र किया, he was summoned to fix the damage. तो उसे नुकसान ठीक करने के लिए बुलाया गया. Within an hour पंकज had everything under control. एक घंटे के अंदर पंकज ने सब कुछ संभाल लिया. He not only fixed the drain. उसने न सिर्फ नाली ठीक की, but also cleaned the stench, बल्कि बदबू भी साफ की, and cleared the area. और उस जगह को साफ किया. This deed made him the cynosure of every officer. इस काम ने उसे हर अधिकारी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया. Soon he was promoted. जल्द ही उसकी पदोन्नति हो गई, as his expertise matched that of an engineer. क्योंकि उसकी विशेषज्ञता एक इंजीनियर के बराबर थी. His immediate boss Lakshman was kind-hearted and calm. उसके बॉस लक्ष्मण दयालु और शांत स्वभाव के थे. He saw the intelligent twinkle in पंकज. उन्होंने पंकज में एक बुद्धिमान चमक तो देखी, but also caught the shadow of isolation. लेकिन साथ ही अकेलेपन की छाया भी देखी. Once लक्ष्मण called पंकज to his cabin. एक बार लक्ष्मण ने पंकज को अपने केबिन में बुलाया and asked, और पूछा, What if I get you a makeover? अगर मैं तुम्हारा मेकओवर कर दूं तो? पंकज could not understand. पंकज समझ नहीं पाया. What do you mean, sir? क्या मतलब है सर? He asked. उसने पूछा. I mean changing your personality. मेरा मतलब है तुम्हारा व्यक्तित्व बदलना. His boss said. उसके बॉस ने कहा. पंकज agreed.
पंकज मान गया बिकॉज ही डिड नॉट हैव मच टू लूज, क्योंकि उसके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था. एज एन ऑफिस टू नोबडी वुड कम क्लोज टू हिम, क्योंकि ऑफिस में भी कोई उसके आसपास भी नहीं आता था. हिज लुक स्कैर्ड देम ऑल, उसका रूपरंग सबको डराता था. लक्ष्मण गॉट ऑल हिज एक्सेस हेयर रिमूव्ड एंड वैक्स्ड, लक्ष्मण ने उसके सारे अतिरिक्त बाल हटवाए और वैक्सिंग करवाई. द डेंटिस्ट मैनेज टू प्लक आउट द डॉग टीथ, दंत चिकित्सक ने किसी तरह से छोटे छोटे दांत निकाल दिए. एंड द हेयर स्टाइलिस्ट क्रॉप द हेयर विद एक्सट्रीम कॉशन, और हेयर स्टाइलिस्ट ने बहुत सावधानी से बट विद ट्रेंड इन एवरी स्निप, लेकिन हर कट में ट्रेंडी तरीके से बाल काटे. When पंकज looked into the mirror, जब पंकज ने आईने में देखा, he was surprised to see the new himself, तो खुद को नया रूप देखकर हैरान रह गया. Oh God! Is it really me? हे भगवान, क्या यह सचमुच मैं हूँ? He was so happy. वह बहुत खुश हुआ. Oh grandmother, oh दादी, can you see me from the heavens windows? क्या आप मुझे स्वर्ग के झरोखों से देख सकती हैं? He looked towards sky. उसने आसमान की ओर देखा. He no more looked vicious and horrid. अब वह खराब और भयानक नहीं दिखता था. He was now a handsome looking lad. वह अब एक सुंदर लड़का था. His colleagues grew envious of him. उसके सहकर्मी उससे ईर्ष्या करने लगे. His seniors now admired him. उसके वरिष्ठ अब उसकी प्रशंसा करते थे. The next raise and promotion was not far away. अगली पदोन्नति और वेतन वृद्धि अब दूर नहीं थी. Soon पंकज was sent on an assignment to his childhood hometown. जल्द ही पंकज को उसके बचपन के गांव में एक काम पर भेज दिया गया. Nobody recognized him there too. वहां भी उसे कोई नहीं पहचान पाया. Even when chanced upon his old schoolmates राजन and राहुल, यहाँ तक कि जब उसके पुराने स्कूल के साथी राजन और राहुल मिले, they had no clue, तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था, that he was their childhood victim, कि वह उनके बचपन का शिकार था. But when पंकज helped the firemen shut the water leak, लेकिन जब पंकज ने पानी के रिसाव को बंद करने में फायरमैन की मदद की, that led to flooding, जिससे बाढ़ आ गई थी, people began to praise him, तो लोग उसकी तारीफ करने लगे. Soon his real identity was known, जल्द ही उसकी असली पहचान सबके सामने आ गई. And everyone was taken aback to see a swan rise from an ugly duckling. और एक बदसूरत बत्तख के बच्चे से एक हंस को निकलते देखकर सब दंग रह गए. मतलब बदसूरत पंकज एक सुंदर लड़के में बदल गया था. From then on, उसके बाद से पंकज enjoyed the rest of his days as any other human being. पंकज ने बाकी जिंदगी आम इंसानों की तरह ही जीनी शुरू कर दी. Quick check. We should not tease anyone for his or her physical appearance. हमें किसी को भी उसके शारीरिक रूप के लिए नहीं चिढ़ाना चाहिए. Why? क्यों? Answer. We should not tease anyone for their physical appearance. हमें किसी को भी उसके शारीरिक रूप के लिए नहीं चिढ़ाना चाहिए. Because it can hurt their feelings. क्योंकि इससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है. And lower their confidence. और उसका आत्मविश्वास कम हो सकता है. A. Answer the following questions orally. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दीजिए. 1. Who had no friends and no guardian? किसका कोई मित्र और कोई अभिभावक नहीं था? Answer. पंकज had no friends and no guardian. पंकज का कोई मित्र और कोई अभिभावक नहीं था. 2. Who was पंकज's only friend? पंकज का एकमात्र मित्र कौन था? Answer. God was पंकज's only friend. भगवान पंकज के एकमात्र मित्र थे. 3. Who gave पंकज nightmares? पंकज को बुरे सपने किसने दिखाए? Answer. राजन and राहुल gave पंकज nightmares.
राजन और राहुल पंकज को बुरे सपने दिखाते थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। 1. What type of a boy पंकज was? पंकज किस प्रकार का लड़का था? आंसर, पंकज was the abominable school boy. पंकज एक घिनौना या बहुत बुरा स्कूली लड़का था। 2. Why did very few go near? क्यों बहुत कम लोग उसके पास जाते थे? And even fewer spoke to him? और उससे भी कम लोग उससे बात करते थे? आंसर, ड्यू टू हिज अपीयरेंस वेरी फ्यू गो नियर हिम। उसके रूपरंग के कारण बहुत कम लोग उसके पास जाते थे। एंड इवन फ्यूअर स्पोक टू हिम। और उससे भी कम लोग उससे बात करते थे। 3. Why did पंकज प्ले अलोन? पंकज अकेले क्यों खेलता था? आंसर, पंकज प्लेड अलोन। पंकज अकेले खेलता था बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स टू प्ले विथ। क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं था। 4. What did he ask his grandmother? उसने अपनी दादी से क्या पूछा? आंसर, he asked his grandmother. उसने अपनी दादी से पूछा why he was hated, कि उससे नफरत क्यों की जाती थी, and had no friends. और उसके कोई दोस्त क्यों नहीं थे? He expressed his doubt. उसने संदेह व्यक्त किया whether was it due to his appearance, कि क्या यह उसके रूपरंग के कारण था। 5. What was the result of पंकज's makeover? पंकज के बदलाव का क्या परिणाम हुआ? आंसर, द रिजल्ट ऑफ हिज मेकओवर, उसके बदलाव का परिणाम यह हुआ that पंकज turned into a handsome lad, कि पंकज एक सुंदर लड़के में बदल गया। 6. What happened in the end of the story? कहानी के अंत में क्या हुआ? आंसर, in the end of the story. कहानी के अंत में पंकज's real identity was known in his hometown. पंकज की असली पहचान उसके घर से पता चली and everyone was taken aback to see a swan rise from an ugly duckling. और एक बदसूरत बत्तख से एक हंस को उभरते देखकर सभी दंग रह गए। F. Answer the following questions in detail. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। 1. What made पंकज the cynosure of every officer? पंकज हर अधिकारी के आकर्षण का केंद्र क्यों था? आंसर, when he was out of school, जब वह स्कूल से बाहर था। He fetched some work for himself, तो उसने अपने लिए कुछ काम ढूंढ लिया, as he did not want to go through all the trials of being poked at in college. क्योंकि वह कॉलेज में होने वाली सभी परीक्षाओं से बचना चाहता था। Once a drain had been choked, एक बार एक नाली जाम हो गई थी, and all the water from the factory sewage was flowing back into the factory. और कारखाने के सीवेज का सारा पानी वापस कारखाने में बह रहा था। The best of engineers rummaged their head to fix it. सबसे अच्छे इंजीनियरों ने इसे ठीक करने के लिए बहुत सोचा, but in vain. लेकिन सब व्यर्थ था। पंकज not only fixed the drain, पंकज ने न केवल नाली को ठीक किया, but also cleaned the stench, बल्कि बदबू को भी साफ किया, and cleared the area. और उस जगह को साफ किया। This deed made him the cynosure of every officer. इस काम ने उसे हर अधिकारी के आकर्षण का केंद्र बना दिया। 2. What did his boss do for his makeover? उसके बॉस ने उसके मेकओवर के लिए क्या किया? आंसर, his boss got all his excess hair removed. उसके बॉस ने उसके सारे अतिरिक्त बाल हटवा दिए। And waxed. और वैक्स करवा दिया। The dentist managed to pluck out the dog teeth. दंत चिकित्सक ने उसके दांत उखाड़ दिए, and the hair stylist cropped the hair with extreme caution. और हेयर स्टाइलिस्ट ने बहुत सावधानी से, but with trend in every snip. लेकिन हर बार नए तरीके से बाल काटे। Thanks to watch my video. I hope you understand this well. Meet soon in next video with the most love.